Okay, so we used to like if you get a milk or if you have a food, you have to cook it, you have to boil it. अगर हम घर पे दूध भी लेके आते हैं, अगर वैसे रख देंगे तो हम कहते हैं दूध फट गया है, दूध स्पॉयल हो गया। क्यों? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अगर हम कुछ भी फ्रोजन आइटम लेके आते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उस चीज को फ्रीज करते हो लो टेम्परेचर, तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के कम चांसेस है। ठीक है। और कभी वगैरह बिस्किट्स वगैरह होते हैं आपके घर में, तो मम्मा यूज टू से टू यू टू क्लोज द कंटेनर एज यू ईट द बिस्किट्स एंड ऑल। So when you close the container tightly in the airtight container, there is the less chances to get the moisture inside the container, and the condition will be dried. So we have seen in our day-to-day life, if we want to preserve food, we need them to keep away from the moisture. Like we used to keep them in the airtight container, and some of the food also we boil it, like what the milk we boil. By boiling, all the microorganisms will be killed and they will not be multiplied. So you can kill the microorganism by boiling, that is making the temperature very high na. And likewise you can kill the microorganism by the keeping temperature very low, like frozen food or milk. Even after boiling, when it will cool down, will keep in the fridge, and then all the microorganism will be killed. Okay, so these all are the methods which are used to preserve the food. ठीक है, बिकॉज अब माइक्रोऑर्गेनिज्म किस कंडीशंस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दे कांट मल्टीप्लाई इफ द कंडीशंस आर ड्राई। ठीक है, दे आर ड्राई when they can't multiply, when the temperature is too low temperature, like in the freezers and all, and when the temperature is too high, means when you boil, then microorganism will be killed. So these are the condition we can say in which the microorganism can't multiply. We can keep them the food for the long time. Okay. Now what is the food preservation and how can we preserve the food? How can we? But there are the certain methods which from the ancient time our mothers are also using. Readjust the camera. This camera is readjusted. Board is in the center only. Okay. Okay. So what is food preservation? The process by which the spoilage of food is prevented. Okay. What is food preservation? The process by which the spoilage of the food can be prevented using chemical or a physical method is called food preservation. Okay. So write down what is food preservation. The process by which the spoilage of food can be prevented by any method. You can use a chemical method or a physical method. Okay? By chemical or physical method. This is known as food preservation. तो फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए हम ट्राई करते हैं ऐसी कंडीशन जनरेट करना कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाए। तो लेट मी टॉक अबाउट फर्स्ट केमिकल मेथड। जो भी बेटे आपकी पास फूड पहुंच रहे हैं, द पैक्ड फूड प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्व किए जाते हैं। ठीक है, उनमें ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं
जो फूड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो देयर विल बी नो एरियल ऑक्सीडेशन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम केमिकल्स ऐड कर देते हैं बेटे जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन नहीं होगी, दैट इज कंडीशन ऐसी हो जाएंगी, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रुक जाएगी, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो हमारा जो फूड है वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आइटम सर्टेन फूड प्रिजर्वेटिव्स आर देयर इन द मार्केट, लाइक जैसे कि जो भी जूसेस वगैरह या अभी कोक शोक आती है ना, इतने दिन के पड़ी हुई आराम से पी जाते हो, तो इसके लिए जो फूड प्रिजर्वेटिव है दैट इज सोडियम बेंजोएट। ठीक है, वो एक केमिकल कंपाउंड है, वो जो डाला जाता है जिसके कारण ऑक्सीडेशन नहीं होती, एंड योर जूसेस एंड कोक एंड शॉक सब सब कुछ जो है वो यू कैन प्रिजर्व फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, so what are the various method for the food preservation? Write down and we'll discuss the method. The first is bete, now we are starting with the methods. First is chemical method. So the name itself clear to you, और मैंने अभी explain भी किया, chemical method में आप क्या use करते हो, chemical substance। ठीक है, chemical substance you are using। अब केमिकल जो सब्सटेंस यूज करते हो दे विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड thus they are known as, these chemical substances are known as bete food preservatives। We add food preservatives in the food items to preserve them। ठीक है, we add the food preservatives, that is a chemical preservative actually, which are being added to food to delay the check or to remove the microorganism or to control the growth of microorganism, we can say. So we put certain chemical substances. What does this chemical substance does? It will remove the oxygen and prevent the aerial oxidation, air से oxidation होना जो है फूड आइटम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है जब ऑक्सीजन नहीं होती। तो सर्टेन राइट द वेरियस, लाइक आई हैव गिवन द एग्जांपल, वन इज बेटे सोडियम बेंजोएट। Sodium benzoate is present in mostly the juices kind of items like fruit juice or squashes like this। ठीक है, so sodium benzoate is a chemical substance that is of chemical food preservative which is used in the squashes and all to prevent the aerial oxidation and thus to prevent the growth of the microorganism। Okay, growth of the microorganism। In the same way there is a citric acid। ठीक है, this acid is used in the confectionery items। जो भी आपकी कैंडीज कुंडीज आती हैं, मीठा मीठा खाते हो ना, उसमें जो एसिड थोड़ा सा डाला जाता है दैट इज अ सिट्रिक एसिड। ओके, okay, so it is used in being, and likewise there is another substance that is potassium metabisulfite। ठीक है, this substance is used in बेटे your jams and all। ठीक है, jams, jellies, this kind of food items। ठीक है, so you have the food preservative sodium benzoate which is used in the squashes, which is used in the juices, and you have citric acid which is being used in the
fuzzy carbonate, yes, fizzy, हाँ, लिम्का एंड ऑल, एवरीथिंग बेटा, है ना. So this is the first method, that is the chemical method. Next method is preservation by common salt. अब आपने घर पे देखा होगा पुराने जमाने में भी अचार वगैरह बनाया जाता है तो नमक लगा दिया जाता है. नींबू वाला अचार बनाते हैं ना मम्मा घर पे, तो सॉल्ट लगा देते हैं. तो प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट नाउ, जैसे नमक लगा के उसको धूप में रख देते हैं, एंड क्या होता है उसमें से सारा पानी निकल जाता है. तो वो जो मीठा मीठा नींबू का अचार है उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती. मम्मा से पूछना, नमक, अजवाइन एंड थोड़ी सी मिर्च डाल के एंड मीठा डाल के उसको धूप में रख दिया जाता है. तो उससे क्या होता है, जो वाटर है वो बाहर आ जाता है, वो डिहाइड्रेशन हो जाती है. क्योंकि हमने क्या बोला है कि जब उसमें से वाटर बाहर निकाल दिया जाएगा, मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, तो आपका जो फूड है वो प्रिजर्व, क्योंकि हमने फूड को प्रिजर्व करने के लिए एक ड्राई कंडीशन प्रिवेल करनी है. ठीक है. तो पुराने जमाने से जो सॉल्ट है वो यूज किया जाता है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए. ये तो चार मैंने घर की एग्जांपल दिया आपको, जैसे नींबू का या कोई मैंगो का, आप आम का अचार खाते हो, मिर्च का अचार खाते हो, तो एवरी टाइम ईच पिकल इज मेड अप बाय सॉल्टिंग. सॉल्ट तो हम डालते ही डालते हैं कि उसमें से मॉइस्चर निकल जाए. ठीक है. तो ऑयल जब डालते हैं तो ये प्रिजर्व ज्यादा रहते हैं, मगर आपको पता है कि जब नींबू का अचार डाला जाता है तो देयर इज नो ऑयल इन दैट. ठीक है. इट वर्क बाय सॉल्ट एंड शुगर ओनली, because when you add sugar there will be removal of the water, as the solution will be hypertonic. You will do osmosis in the higher standard and water will be removed from that lemon, and thus it is preserved because the moisture is removed from the food, है ना. So prevention by the common salt, you can write example I have given you, pickle like mango pickle and all. In the same way, non-vegetarian fish and meat is preserved by salting. ठीक है. It is preserved by salting. Salting क्या help कर रहा है? The salt is helping to remove the moisture from the food. ठीक है. When you will put the salt, this salting will help to remove the moisture from the salt. From salt. तो क्या होगा? Thus prevent the growth of microorganism. It will prevent the growth of microorganism. Still they are coming. 15 minutes are passed, 15 to 20 minutes. Now prevention by sugar. ठीक है. तो जितने भी अगेन शुगर को यूज किया जाता है बेटे, इवन ये भी पिकल में भी आप दे सकते हो, है ना. शुगर से भी हम प्रिजर्व करके, जैम्स जो आती हैं उसमें शुगर कितनी डाली जाती है, जेलीज जो आती है उसमें शुगर कितनी डाली जाती है, स्क्वैश जो आती है उसमें भी शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. तो शुगर आने से क्या हो जाता है, अगेन जो सॉल्ट आने से होता है, शुगर ऑल्सो मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करता है और आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. अगेन यू कैन राइट योरसेल्फ. ठीक है. शुगर ऑल्सो रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट सेम ऑफ द सॉल्ट. ठीक है. will reduce the moisture content of the food and it will prevent the growth of the microorganism and thus prevent the spoiling of the food, like species and jams and jellies are preserved by the sugar. Got it? So you can write yourself. So chemical method mein we have done 3 methods till now. One is chemical method. We have used sodium benzoate, potassium metasulfite, citric acid. These are the various food preservative, chemical food preservative, depending on the type of food they are used. In the same way, we can prevent by the common salt.
like if you will add salt, if you do salting, it will again remove the moisture from the food and thus prevent the growth of the microorganism. And then you can prevent by adding sugar, and now you can prevent by the use of oil or a vinegar. Again we can give the example of achar, है ना, ठीक है. So prevention by oil and vinegar. Vinegar क्या होता है? Can anyone tell me? Vinegar, yes. विनेगर वाले प्याज खा के आते हो आप, रेड वाले? कैन एनीवन? यस. सिरका, यस. हाँ जी, सिरका क्या होती है उसकी कॉम्पोजिशन? एसिडिक एसिड, यस. इट हैज एन एथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड सिरके में होता है कुछ परसेंटेज. जो भी मार्केट वाले हैं, थोड़ा सा वो जो आप नूडल्स खाते हो ना, उसमें भी सिरका डालते हैं, दैट इज विनेगर डाला जाता है, वो वाइट सा. जो आप पिकल्स मार्केट में बनते हैं, घर पे तो मम्मा जो पिकल है वो ऑयल में बनाते हैं, तो हमारा जो गला है कम खराब होता है फिर भी, ठीक है. और जो मार्केट में जो हमें पिकल ज्यादातर मिलते हैं, दीज आर मेड इन विनेगर, जिससे खट्टापन भी आता है और जो प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है, बट हमारे गले को काफी इफेक्ट कर जाता है. तो सिरके वाले प्याज खाते हैं वो रेड कलर के. तो ये जो सारी चीजें हैं, चाहे हम विनेगर की बात करें चाहे वो ऑयल की बात करें, तो इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है. और हमें पता है कि वो सरसों का तेल मम्मा शुरू से यूज करते हैं. एंड विनेगर ऑल्सो हमारे जो वेरियस अचार घर पे डलते हैं. अभी तो सर्दियों में आप मीठा एंड खट्टा मीठा गाजर का, गोभी का एंड ऑल पिकल्स यू आर हैविंग, and these are being made in the vinegar only, ठीक है. that pickle is made up in the vinegar, and which mango pickle you are eating from the summers to winters and always you are eating with your chapatis and all, these are made in mustard oil. You have seen in your homes also, these are made in the mustard oil, ठीक है. So these two methods, these are oil and vinegar, they also prevent the growth of microorganism. देखो ऑयल या विनेगर होगा, एक लेयर सी बन जाएगी जिससे ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है. तो इट इज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, ठीक है. इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिशेस टू, ठीक. सो यू कैन राइट this method is used to prevent the growth of microorganism, and they are used in the fruit and vegetable in the form of pickles, and they also help in preservation of the non-veg, that is meat and fish also. Okay, now very important is pasteurization, ठीक है. Pasteurization is the process for preserving the milk only, ठीक है. So write down the next is, we have done a scientist also, ठीक है. Pasteurization we have done बेटे one scientist Louis Pasteur already, है ना. तो what is pasteurization? It is a process for preserving of the milk. If you want to preserve the milk, जो हम घर पे भी प्रिजर्व करते हैं, मगर वो इतनी देर नहीं कर पाते, मगर थोड़ी सी तो वो प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं कि हम पहले मिल्क को हीट तो करते ही हैं. जो भी हमें मिल्क मैन मिल्क दे के जाता है, तो मम्मा यूज टू कलेक्ट दैट मिल्क और आप वो बॉयल करने के लिए रख देते हैं. तो बॉयल करने से क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं. तो पास्चराइजेशन प्रोसेस जो होता है वो मिल्क की प्रिजर्वेशन के लिए बना होता है. पहले मिल्क को हीट किया जाता है बेटे अराउंड 70 डिग्री 15 to 30 सेकेंड्स, ठीक है. सिर्फ 15 to 30 सेकेंड्स जो हैं उस मिल्क को हीट किया जाता है. थोड़ा बहुत कम टाइम है ना, गैस ऑन करी, मगर टेम्परेचर शुड बी 70 डिग्री. तो हमने स्टार्टिंग में पास्चराइजेशन में क्या करना है, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है,
कितने टाइम के लिए? 15 to 30 सेकेंड। ठीक है, 70 डिग्री पे हीट कर दिया तो क्या होगा बेटे? सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। अब आप एकदम से इसको ठंडा कर दोगे, इट विल बी कूल्ड, देन क्या करोगे आप? हीटिंग कर दी, अब हम करेंगे कूल। कितनी डिग्री पे? 10 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ यू विल डू कूलिंग। अब कूलिंग से क्या होगा? जो जितने भी पहले तो हीटिंग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, फिर एकदम से ठंडा करेंगे तो और ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस मिल्क को हम एक साफ सुथरी स्टेरिलाइज बॉटल में पैक करके रख लेते हैं, वो कोल्ड प्लेसेस में। ठीक है, तो जब हम बाहर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, यहाँ पे भी शुरू हो गया है, तो दे हैव लॉन्ग केन्स एंड दे डोंट हैव एनी टाइम टू बॉयल द मिल्क एज वी हैव, द इंडियंस हैव और मदर्स हैव। वी वांट अ फ्रेश मिल्क, तो हम तो रोज जो काओ का मिल्क आता है हम फ्रेश मिल्क लेते हैं। तो मगर आजकल जो पैकेट्स वगैरह में आते हैं या केन कंटेनर में आते हैं, तो वो पास्चराइज मिल्क आ रहा है आपका। उसमें करते क्या है, वो एक हाई टेम्परेचर पे पहले तो बॉईल कर देते हैं, फिर एकदम से उसको ठंडा करके और पूरी साफ सुथरी बॉटल्स में, दैट इज 10 डिग्री पे कूल करने के बाद स्टेरिलाइज्ड बॉटल में उनको स्टोर करके एट द कूल प्लेसेस, एट कोल्ड प्लेसेस पे रखा जाता है। तो यू नो दैट आजकल बहुत ज्यादा जो भी आ रहे हैं, ठीक है, जो कंटेनर्स वगैरह आते हैं, दैट इज अ स्टेरिलाइज्ड वन, पैकेट्स वगैरह आते हैं, तो इसको हम बाद में कंज्यूम कर सकते हैं, हमें बॉयल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पहले ही किल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये मेथड किसने दिया था? ये लुईस पास्चर ने हमें दिया था, तो उसके नेम से हमने इसका नेम लिख दिया पास्चराइजेशन। एनी डाउट बेटे रिगार्डिंग दिस मेथड? तो पहले हमने क्या किया? बॉयल किया, फिर उसको बाद 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री पे, फिर उसको कूल कर दिया 10 डिग्री पे, फिर उसको स्टोर करके रख दिया। तो ये सारे मेथड को जिससे हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, दैट इज नोन एज पास्चराइजेशन। ठीक है, तो हम कम यूज करते हैं ये मेथड, बिकॉज वी बिलीव इन फ्रेश मिल्क एंड we are daily getting at our places, and then we will boil and keep in the fridge and all. This is mostly practices in the foreign countries, why they don't have much time, they eat much preserved food. We Indians eat fresh food rather. Nowadays we are going to that side and we are using that methods and all. Okay. So next is by बेटे freezing. Freezing में तो हमें पता ही है, हम रेफ्रिजरेटर्स में बहुत कुछ रखते हैं। मैंने I have given you the example yesterday also and today also. फ्रोजन पीज आ रहे हैं आजकल, फ्रोजन कॉर्न्स आ रहे हैं, मकेन की टिक्कीज खाते हो, ये सब कुछ ये क्या है? ये जो फूड है उसको हम फ्रीज करके रखते हैं, तो फ्रीज करने से लो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। लो टेम्परेचर से क्या होता है, ये फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड इज बाय फ्रीजिंग और कूलिंग। ठीक है, सो बाय फ्रीजिंग यू कैन राइट योरसेल्फ, इसमें मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यू विल टेल मी, यू नो एवरीथिंग दैट वी आर कीपिंग अवर फूड आइटम, आजकल फ्रूट्स वगैरह भी, वेजिटेबल जो कहते हैं ना कि वेदर के नहीं होते, मौसम के नहीं होते, वो भी हम खाते हैं। वी कैन ईट वाटरमेलन्स nowadays we can eat the bindi and all in this season only, which is a summer vegetable. Why? Because they are frozen fruits and vegetables, they are freezed at low temperature when there was summer, and when and likewise in the winter we have moss-peas and all, and we can eat them in the summer season too, because they are kept in the freezers there. ठीक है, डीप फ्रीज किया जाता है लो टेम्परेचर पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते,
तो फूड की जो स्पॉइलेज है वो रुक जाती है, एंड वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल in the season in which they are not growing. ठीक है, you can write yourself, tell me. Yes bete, you can write the point. So why they are frozen? They are frozen because they can control the growth of microorganism. You can give any kind of example. You have so many example: McCain tikkis, frozen peas, frozen corns. The vegetables you are having in the winter season which belong to summer season, you have seen red carrot coming in the summer season which is of the winter season, that is a frozen vegetable only. ठीक है, so you can give so many examples. ठीक है, likewise now you are eating Lay's, Kurkures, isn't it? I have given you example yesterday also, and you have seen that kind of food which have so many of air in it, है ना? तो जो भी, तो अब ये क्या करते हैं, वो एयर ऑक्सीजन तो होती नहीं है, वो ऑक्सीजन तो उसमें से निकाल दी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन उसमें से पूरी निकाल दी जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वैक्यूम पैकिंग होना। ठीक है, नेक्स्ट इज वैक्यूम पैकिंग। अब वैक्यूम पैकिंग में जो आपका फूड है वो एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। जब एयर टाइट कंटेनर होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, तब उसमें बेटे एयर ही नहीं जाएगी। जब एयर ही नहीं जाएगी तो एरियल ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या किया गया, फूड को कुक कर दिया गया। पहले हम क्या करेंगे, फूड को कुक करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे। तो यू विल कुक द फूड फर्स्ट। ठीक है, when you will cook the food at high temperature, there will be killing of the microorganism will kill. ठीक है, okay, now food is being sterilized. Now this food which is sterilized by heating, it will be packed. It will be packed in the airtight container. Airtight containers in which no air will be there. ठीक है, no air will be there, and this type of packing is known as bete air free packing. This type of packing which is air free packing is known as vacuum packing. So you can write down what is vacuum packing. The air free packing is called vacuum packing. Okay, एयर फ्री पैकिंग। ये जो आपके कुरकुरे वगैरह होते हैं इसमें एयर नहीं होती, इसमें नाइट्रोजन होती है जो एरियल ऑक्सीडेशन रोकती है। ठीक है, जो एरियल ऑक्सीडेशन रोकती है, तो इसमें नाइट्रोजन डाली जाती है। या कई ऐसे भी फूड आते हैं जिसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, टाइट कर देते हैं, एयर भी पास नहीं होते, उसे कहते हैं बेटे वैक्यूम पैकिंग। हाँ, कृतिका ने भी लिखा नाइट्रोजन, यस। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ पैकिंग ऑफ डेट्स, यस यू आर राइट। हाँ, आजकल जो डेट्स आती हैं उसमें वैक्यूम पैकिंग कराई जाती है, यू आर वेरी मच राइट, है ना। तो आप देखते हो बिल्कुल पैकेट ऐसे साथ में जुड़े होते हैं, क्या वो खराब ना हो। हाँ, लेज में बेटे नाइट्रोजन फ्लश करवाई जाती है, एयर निकाली जाती है। पूरा वैक्यूम भी नहीं कह सकते हम, क्रिएट होता है, तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो फूड को कुक करके देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, यस जेम्स, यस यू आर वेरी मच राइट। उसमें हम देखते हैं वो कैसे सील्ड किए जाते हैं एकदम से, जब हम खोलते हैं तो स्टेरिलाइज का मतलब होता है जैसे कि जिनको हाई टेम्परेचर पे अच्छे से बॉईल किया जाए। बेटे अगर आप ना कभी लैब्स में गए हो ना, जो लैब्स होती है जहाँ पे ब्लड टेस्टिंग होती है,
तो उनको कहना हमें ना ऑटोक्लेव दिखाओ। ऑटोक्लेव ना एक कुकर जैसा नजर आ रहा होता है। ऑटोक्लेव में ना ये जो सिरिंज होती हैं और ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये सारा कुछ ना स्टरीलाइज करते हैं। स्टरीलाइजेशन प्रोसेस में ना अंडर हाई टेम्परेचर उन चीजों को रखा जाता है और स्टीम के साथ उसको गर्म किया जाता है। तो एक ऑटोक्लेव्स लगे होते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देते हो। जब हाई टेम्परेचर देते हो ना तो स्टीम की हेल्प से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। जैसे कुकर है, कुकर में सब्जी क्यों बनती है? कुकर में जब आप क्लोज करते हो तो आपका प्रेशर ऊपर से हाई हो जाता है, तो अंडर जो वाटर है ना वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉयल करता है। तो स्टेरिलाइजेशन में हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं बाय क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर हाई टेम्परेचर। ओके, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देके आप कभी जाना, आपको कभी मौका मिले ना जब आप डॉक्टर विजिट करते हो ये, तो इनको बोलना कि ऑटोक्लेव आपको दिखाएं। यू विल सी ऑटोक्लेव देयर, वो बिल्कुल कुकर की शेप ऐसे, अब तो बड़े बड़े आ गए हैं, या बायोटेक्नोलॉजिकल जो लैब्स होती है ना उनके अंदर आप देखोगे तो वहां पे सारा कुछ जो ये वो उनके टर्म्स होते हैं या उनके कुछ भी जो भी वो यूज करते हैं, इवन आप डेंटिस्ट के पास भी माइट बी शी मस्ट आल्सो बी हैविंग, तो उसमें अंडर हाई टेम्परेचर वो बंद किया जाता है। यू हैव सीन, वेरी गुड, फॉर्मूला सीन है ना। तो आपने देखा होगा वो ऐसे गोल सा होता है, तो वो हाई टेम्परेचर पे अब तो बड़े बड़े आ गए, तो उसको स्टेरिलाइज किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो ऐसी जो हमारे पास फूड वगैरह आते हैं तो उनको स्टेरिलाइजेशन का मतलब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर दिए जाते हैं। तो ऐसे सिंपल हीटिंग से नहीं हम कर सकते। वैसे जो गर्म करते हैं उसमें से टेम्परेचर इतना अटेन नहीं होता। जब आप किसी चीज को बंद कर देते हो और टेम्परेचर हाई कर देते हो वो टेम्परेचर इतना अटेन हो जाता है। ठीक है, बार्बर शॉप, यू हैव सीन द बार्बर शॉप, दे आर हैविंग दैट, वेरी नाइस। Technology being advanced now, है? चलो, we'll meet tomorrow and we'll finish more of the food preservation and then we'll start with the nitrogen cycle and might be your chapter will be finished.